ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی، تبلیغ میں جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے یہ تبلیغ والوں کا مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. یہ کام بھی نہیں کرتے، سب پریشان، میرے دوست پریشان کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی، تو رونے لگے، یا اللہ یہ میرا مال نہیں، میرے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے حج نہیں کیا، یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے، وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی، تو نے اس کو پیسے دیا، دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں ہوگا. میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا، یوسف، میں، جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے. امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کا کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام. وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے. کمپنی کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا. اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے. یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے. اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں. کہ اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. ایک آدمی نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا. تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے. مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینی، کھٹا نکلا. تو مالک نے مبارک دوسرا ڈالا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے. کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا. کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں. کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر. مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا. پریشان تھا. کہا مالک تو پریشان ہو گیا، یار میری ایک بیٹی ہے بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں. کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو. کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا. دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی. بیوی نے کہا چلو تلاش کریں. وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے. بیوی نے کہا کرو نکاح. اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا. اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا، عبداللہ ابن مبارک. کیسا اللہ نے بچہ دیا. اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک. کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی. حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا،
आज मुसलमान ईमान कमजोर की वजह से दुकानों में फंसे हुए, दुकानों में आसमान से मैंने 20 साल माल मिला, वो गम लाया, नफरतें लाया, बीमारियां लाया, घर की लड़ाइयां लाया, बेसुकूनी लाया, बिस्तर खरीदा नींद गायब, घर खरीदा खुशियां गायब, दवाई खरीदी शिफा गायब, हथियार खरीदे और हिफाजत गायब, लड़ाई 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 लड़ाई। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जा रहे हैं, देखा एक बच्ची कचरे में से परिंदा उठा के भागी, तो वो हैरान परेशान उसके घर गए, उसने कुंडी लगा ली, कहा बेटा ये तुमने मुर्दा उठाया हराम है। कहा बड़े मियाँ चले जाओ, मेरे ऊपर 72 घंटे गुजर चुके हैं, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने कुछ भी नहीं खाया। वो जो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने सबको बुलाया, चलो ऐसा करो ये जितना माल जमा है सब जमा करो, हज अगले साल करें, बच्ची को दे दो। सारा माल बच्ची को दे दिया, वापस चले गए। जब महीने 1.5 महीने बाद हाजी आए, एक आज अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला क्या हाल है, खैरियत? वो हज पे मुलाकात हुई थी। कहा मेरी तुमसे मुलाकात? मैं तो नहीं, घर ही नहीं आया, मीना में मैं मिलो। अच्छा अच्छा। एक आया वहाँ अरफात में, एक मुजदलिफे में, हज पे मिले। अच्छा। एक आदमी है इतनी बड़ी थैली सोने की अशरफियाँ। क्या अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुमने मुझे सोने की अशरफियाँ दी थी, मैं परेशान था, घूम न जाए, ये अपनी अमानत रख दो। कहा मैंने दी थी, ये किताबों का किस्सा है, हवाई बात नहीं मालूम, मैंने दी थी। और आज भी ये हो रहा है भाई, तबलीग में जो सही तबलीग का काम कर रहे हैं उनके साथ ये हो रहा है। पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम हैरान है, ये तबलीग वालों का माल कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा दुनिया में यही फिर रहे हैं जहाजों में, ये माल कहाँ से आ रहा है? ये काम भी नहीं करते, सब परेशान, मेरे दोस्त परेशान। कि मेरे क्रिकेट वाले दोस्त कहते हैं तेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो कभी इधर कभी उधर, कहाँ से? अब वो जनाब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा ये कहाँ से अशरफे आ गई, तो रोने लगे, या अल्लाह ये मेरा माल नहीं मेरे पास कहाँ से आ गया, मैंने हज नहीं किया, ये मुझे हाजी समझ रहे हैं। सोए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहा अब्दुल्लाह इब्न मुबारक वो जो बच्ची थी ना जिसको तूने पैसे दिए, वो मेरी हाशमी खानदान की बेटी थी, तूने उसको पैसे दिए, देख अल्लाह ने तुझे कितनी सोनों की अशरफियाँ दी। और तूने हज करना था, नहीं किया ना, अल्लाह ने एक फरिश्ता उतारा तेरी शक्ल का, और तेरा हज करा के तेरे हज को आला दर्जे पे कबूल भी कर लिया। मेरे प्यारों हमें क्या हो गया? हसन, हुसैन और अब्दुल्लाह इब्न जाफर, 3 भाई, 2 सके भाई, एक कजिन, ये तीनों जा रहे थे मदीना। तो रास्ते में एक देखी अपना बस्ती उम्रा करके जा रहे थे, एक बुढ़िया की, उसके पास गए, बुढ़िया हम प्यासे हैं हाशमी खानदान के, हसन हुसैन माशाल्लाह मुबारक बरकतें आई, क्या करूं बेटा? अम्मा प्यास लगी है, कुछ पिला दे। कहा मेरी बकरी खड़ी है, दूध निकाल पिला दे, दूध निकाला पी गए। कहा अम्मा भूख भी बहुत लगी है। कहा बकरी ज़िबा कर दे, खिला दूं, खिला दी। 50-60 बकरियां थी, चली गई। शाम को बड़े मियाँ आए, बुड़बुड़ करने लगे, क्या किया तुमने, बकरियां खिला दी, क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से 50-60 बकरियां सारी वो बीमार हो गई, सब मर गई। अब घर में फाके आ गए, गए मदीना। तो उन्होंने भाई ने कहा था मदीना हमारी ज़ियारत करना, हमसे मिलना। उनका देखेंगे। खैर मदीना गए तो एकदम जो सबसे छोटे भाई थे हजरत हुसैन, उन्होंने कहा अरे बुढ़िया पहचाना मुझे? कौन? मैं हुसैन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा। अच्छा तुम हुसैन? क्या? हाथ पकड़ा, कहा चल बुढ़िया। 1000 बकरियां दी और 1000 सोने के सिक्के दिए, एक बकरी देने पे 1000। कल मेरी तरफ से 1000 बकरियां और 1000 सोने के सिक्के। वो अब्दुल्लाह बिन जाफर ने बुला रहे, वहां गई, कहा कितने भाइयों ने दिए? कहा 1000। कहा अगर तू पहले आती तो मेरे घर से तेरे घर तक बकरियों का रेवड़ होता, लेकिन वो 2 बच्चे जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मैं उन बच्चों से ऊपर करूंगा, उनकी हैसियत छोटी होगी, मैं नहीं कर सकता। ये ले 2000 बकरियां, 2000 सोने के सिक्के, एक बकरी अल्लाह को दी, 4000 बकरियां अल्लाह ने लौटा दी 4000 सिक्कों के साथ। ये है ईमान वाले की रोजी। बेईमान की रोजियां, कहीं दुबई फिर रहा है, कहीं यहाँ फिर रहा है, कहीं वहां फिर रहा है। ईमान वाले बन जाओ, रोजी मिल जाएगी। ईमान वाला कौन है? जो तहज्जुद पढ़ता है, रोजे रखता है, हर वक्त मौत को अपने सामने रखता है। और क्या जब सुबह उठता है, या मैं अपने दिल की तरफ देखता हूँ, मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली होता है। ईमान वाली की अलामत क्या है? जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए कलमा क्या है? ला इलाहा। पहले सारी दुनिया निकाल, सारे बुत निकाल, इल्लल्लाह, फिर आएगा, वरना नहीं आएगा। जिस दिल में दुनिया होगी उस दिल में अल्लाह नहीं आते मेरे प्यारों। सबसे पहले इस दुनिया को दिल से निकालो। इसलिए कह रहे दुनिया से निकलो, तबलीग में जाओ। यहाँ बैठ के दीन समझ नहीं आएगा, निकलो यहाँ से। गोबर के माहौल में बैठ के गोबर की बू नहीं आती, गोबर के माहौल से निकलो, वापस आओ, फिर पता चलेगा किस गोबर में बैठा था। मेरे प्यारे दोस्त बुजुर्गों, तो ईमान बनेगा कैसे? बहुत आसान काम है, आसान ही बता रहा हूँ। ईमान, मैं 2001 में तबलीग में 6 रोजा लगा। मैं दुनिया बहुत देख के अल्लाह ने मुझे दिखाई थी। पहली रात मस्जिद में गुजारी, सब दुनिया, मैं मोबाइल छोड़ के आया था। 20 बच्चों से कहा 72 घंटे, बच्चे बस 72 घंटे मुझसे बात ना करना। जो दुनिया से कटता है अल्लाह उसको कुछ और दिखाता है। जो दुनिया साल साथ लेके जाता है उसको भी इसमें कुछ नजर नहीं आता, वो भी बेचारा दुनिया बनाने में लग जाता है।
मैं 3 दिन दुनिया से कटा, पहली रात को अल्लाह ने सब कुछ समझा दिया। ये मोबाइल की लाइट है ना, ये लाइट, ये अभी इतना काम नहीं देगी भाई। ये देखो मैं लगा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अंधेरे में बहुत काम देती है क्योंकि लाइट है। मेरे दिल में अंधेरा था, इसलिए एक रात में अल्लाह ने बात समझा दी कि मसला कहाँ फंसा है। तो 2000 में मैं तबलीग में सेरोजा लगा। फिर क्या किया, मैंने एक काम किया। मुझे बुजुर्गों ने क्या किया, कहा कि सईद अनवर एक काम कर लो, तुम क्या करो, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा तुम भी करो, हर 12 घंटे में एक दफा, सुबह शाम 2 दफा वहां बैठा करो जो लोग अल्लाह की बात कर रहे हैं। ये नबी को हुक्म है कुरान में। जब नबी आए बाहर, ये आयत सुन के खुश हुए और आके बैठे। कहा क्यों बैठे, कहा आज मुझे अल्लाह ने आयत भेजी है कि मुझे कहा है मैं इन लोगों के साथ बैठ के अल्लाह को मैं भी सुनूं। कहा कुर्बान जाऊं अल्लाह के, जिसने मुझे ऐसी उम्मत दी है जैसे मुझे हुक्म दिया मैं उसकी बात सुनूं। तो नबी को भी हुक्म है अल्लाह की बात सुबह शाम सुनना, अपने नफ्स को सब्र के साथ। ए नबी तुम भी जोड़ो इन महफिलों में। मेरी आपसे गुजारिश है, ईमान दिल में उतारना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, रोज प्रैक्टिस करो। डॉक्टर बनना चाहते हो, रोज मेहनत करो। शिफा चाहिए, रोज दवाई खाओ। ये 2 दवाइयां दे के जा रहा हूं आपको। क्या करो, 2 दवाइयां रोजाना सुबह शाम हर घंटे में अल्लाह की बात 15 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो। दुनिया की हर मस्जिद में फजर के बाद बयान होता है, उस बयान में बैठो, 10 मिनट बैठ जाओ, पेट्रोल डालो, बगैर पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती। और सोने से पहले असर के बाद, बेहतरीन टाइम असर के बाद है। अगर कोई काम करता है कोई बात नहीं, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, दुनिया की हर मस्जिद में ईशा में तालीम होती है, थोड़ी देर तालीम बैठ जाओ। ये 2 दवाइयां चंद महीने खा लो मेरे प्यारो, देखो दिल कैसे नूरानी होता है। देखो मस्जिद से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हो जाएगी, दीन से मोहब्बत हो जाएगी। कुरान पढ़ने का दिल करेगा। आज व्हाट्सएप का दिल करता है ना, फिर कुरान पढ़ने का दिल करता है। क्या करो, सुबह शाम 2 दफा बस। गुजारिश है दुआएं दोगे मुझे। मैंने 2 साल ये किया, अल्लाह ने सारी बात मुझे समझा दी। लोगों ने मना किया 4 महीने लगाओ, आज तो लोग पकड़ते हैं ना। वल्लाह अल्लाह को मुझ पे फजल है, कोई बुजुर्गी नहीं मेरी, सिर्फ अल्लाह का फजल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाऊंगा, अपने अमाल से जन्नत में जा सकता। हम तो उनकी जुत्ती की खाक भी नहीं। अल्लाह ने अपना फजल किया। 2 साल बाद मैं खुद निकला, सब मुझे रोक रहे थे। क्या, क्यों, कि मैं रोजाना अल्लाह की बात सुन रहा था। आपसे गुजारिश है, जैसे बगैर पानी के कोई स्विमर नहीं बन सकता, बगैर क्रिकेट ग्राउंड के क्रिकेटर नहीं बन सकता, बगैर मस्जिद के कोई ईमान वाला नहीं बन सकता। कौन कौन नियत करता है रोजाना 2 दफा सुबह शाम मस्जिद को वक्त देंगे इंशाल्लाह, इस पेट्रोल को डलवाएंगे, इस ईमान को डलवाएंगे। ये पहला काम। दूसरी चीज क्या, और ये रोजी का बड़ा जरिया है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तअनफुल मोमिनीन। ईमान वालो, ईमान का जिक्र करो, जिक्र तुम्हें नफा होगा। करो अल्लाह का जिक्र। मैं आपको रोजी बता रहा हूँ, सुनो। और क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान और जिन को पैदा नहीं किया सिर्फ अपनी इबादत के लिए। मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मेरा तस्करा करो। और आगे क्या कहा, मा उरीदु मिनहुम रिज़्क़ व मा उरीदु अन यतमून। मैंने तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा नहीं किया, ना मैं रिस्क चाहता हूँ। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह राज़िक़ ज़ात है, अल्लाह सबको खिलाता है ना। सईद अनवर साहब है, पहले एक दुनियादार थे, क्रिकेटर थे, नामवर क्रिकेटर थे। सारी ज़िंदगी इन्होंने क्रिकेट के लिए हर तरह की अयाशी और हर तरह की सहूलतें इन्होंने देखी। लेकिन जब से अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी, ये दीन के साथ लगे, दीन की मेहनत के साथ जुड़े, दीनदार बने, अल्लाह के दीन की मदद की, तो कैसे अल्लाह ताला ने इनको चमकाया, कैसे इनकी ज़ुबान को अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए नरम कर दिया, कैसे ये लोग अब दीन की तबलीग कर रहे हैं। अल्लाह का तल्लक लोगों के साथ और लोगों का तल्लक अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं। तो मेरे भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली दावत वाली मेहनत है, ये हम हर कलमा पढ़ने वाले की ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को समझें। और जिन हजरात ने अभी तक इस काम को नहीं सीखा, तो उलमा हज़रात कहते हैं कि पहली फुर्सत में 4 माह लगाकर इस काम की तरतीब को सीखें। फिर पूरी दुनिया हमारी मेहनत का मैदान है, इस पूरी दुनिया में इस कलमे को लेके जाना है। कलमा तो सबको पता है, लेकिन कलमे का मकसद हम लोग भूल गए। कलमे का मकसद है कि एक अल्लाह से होने का यकीन आ जाए। बाकी सब मखलूक है, मखलूक कुछ भी नहीं कर सकती। मखलूक सब कुछ करने में अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह कुछ भी करने में जो है वो किसी का भी मोहताज नहीं। इस बात का यकीन हमारे दिलों के अंदर आ गया तो हमारे सारे मसले दुरुस्त हो जाएंगे। राय मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।